Good evening, sir. Hi, good evening. That's better. So myself Deepti Kushwaha, and currently I'm pursuing BCom honors from Basanta College, affiliated from Okay. BHU, and I'm currently in third year. You are from Banaras only? Yes, sir. How about your family, your parents and all? Sir, I live in joint family, so I have a lot of people at my home. That's good. How many? Um, there are actually 14 members in my family. 14. Yes. Oh, it's as good as a district. Yes. Okay, okay. Who all are there in these 14 members? Uh, so my father has three brothers, younger brothers, and Mm-hmm. they are all married. So I Okay. have my aunties with me and also my Mm. cousins, and Right. I have two siblings. So all that went for 14 my family members. That's great. That's great. That's great. So, what does your father do? Business, he's in businessman. Also, and all your uncles also? Yes, sir. They All have your their chacha separate and all? business too. Yes, sir. Okay. They have their separate business. So, Banaras is basically a cultural city. I mean, I don't see there is a lot of industries and all in Banaras. Are there? Sir, there were some industries, but they shut down due to other various reasons. Uh, Mm-hmm. Sometimes the reason was COVID also, or sometimes the reason was the people of the city do not want to work in here. They migrate to Mumbai, Delhi, big metro cities, so they shut. It's a cultural heritage. Hmm? I think Yes, one of the oldest city and civilization. yes. Okay. Dipti, I am Hardik Dixit. I am based at Bharuch, a city in Gujarat. Okay, like Banaras is at the bank of river Ganga. Bharuch is at the bank of river Narmada. This is also a very holy river. Yes. So this place is also a cultural heritage. Uh, I am here. I am working. Uh, I'm science graduate and a postgraduate in IT and HR. It's been almost 25 years in the industry. I worked in various organizations with various capacities. I started my career in 1999, and I think you might have born around that time. No, 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 not okay. I born So, after that. oh my God, जितनी तुम्हारी उम्र है उतना मेरा तजुर्बा है ऐसा मैं बोल सकता हूँ. Okay, so with Young Skill India, I'm associated for a long time, and with Archana ma'am, I conduct HR classes. So if you had attended yesterday's session, I think Archana ma'am has taken one session yesterday, Yes, on on management principles. principal man. Yes. Yeah. So with her, I share HR as a topic, and so what is your aspiration? How do you see going ahead? What is your plan? Sir, my future plans. I mean, in Young Skill India, there are a lot of streams. There are various subjects. Yes. What would you like to pursue? Your specialization Sir, would be what? You are doing your PA honors, right? You said BCom honors. Yes, sir. BCom honors. Yes. So, any specific stream in BCom? Yes, sir. I'm doing my honors in finance. Finance. Yes. Okay, okay. Fine. So, going forward, what else? What after this? UPSC? Mm. No. The corporate sector, I think corporate sector is good for me. So I want to be there. Okay. So then you have to come out of Banaras, right? Mm-hmm. I have to. I have to So migrate. इतने सारे लोग हैं घर में सबको छोड़ के कैसे निकलोगे? Sir, if you want to grow, you have to leave something or other. You have to do sacrifice for it. That's true. That's true. Okay. No, but then is it possible?
Will it be comfortable? I think so. But what you said is correct. I was born at Ahmedabad. I did my schooling at Bareilly, UP. I did my graduation at a place called Daman. I worked at Daman, Surat, Baroda, and now I'm at Bharuch. So unless you move out of your comfort zone, uh, being successful only remains a phrase. Like even Neeraj sir also, he has been with good organizations in the past, and then coming out of his comfort zone, and then this Young Skill India, which in edtech for education. Okay, wherein we are focusing on building management skills for all young people, whether they are fresh graduates or whether they are working professionals. So, how to go ahead about this today's session? We will be talking about HR. So, myself and Archana ma'am will be sharing some subjects and topics. Okay. So, today being the first session and it's like one on one, how do you want to go ahead about it? You have any concept, any thought about HR? कहीं सुना है, पढ़ा है? Yes, sir. I think an HR is a person who manages the human resource in an organization. Is the most responsible person of the organization who is responsible for the correct person uh, selected for the selection of the correct person for the particular job. Okay. So, generally, the perception about HR is it's a very easy job. No, it's not. No, no. Otherwise, if you see, if you refer the industries, they feel that HR is the most easiest department, most comfortable people. They have hardly They anything to think do. the HR do 9 to 5 job, and his or her work is to sit and see the resume and select and reject it. That's all. But it's vast. It has wide area to do with. There are multiple peoples with multiple mindsets. Uh, जिनके साथ डील करना बहुत ही हार्ड हो जाता है sometimes. True. So it is definitely not an easy task. Huh. But as you have said that you are doing your BCom in finance as an honors. So going forward, you will be choosing finance as a subject or HR as a subject or any other area of your interest. So currently, I will go with finance only, but in future, I may change if I see there is growth and interest of mine. So see, this is where HR comes in picture. You you are living in a joint family where there are 14 people, Yes. as you said. So they all think alike? No, No. they don't. They all behave alike. No, sir. They have same likes and interests. No. Share the hobbies. May or may not be sometimes. Anything which is common among all of you. Yes. We love to sleep. We all You have to love to sleep. sleep. Whole family love to sleep. Okay. If Now, somebody ask us just come for the vacation or hang out with us, we all said we want to stay at home. We just want to relax here only. I think some network issue is there, but very soon he will connect. Yeah.
Yeah, I'm sorry, it was disconnected. Am I audible? Yes, sir, you are. Okay. So we all differ in all aspects. Okay. So, like your father and his brothers, they they grew in a similar work or home environment. Okay. Which is not the case with your aunties. चाचियां जो भी हैं वो सब अलग अलग जगह से हैं. चाचा सारे एक ही जगह. तो उनकी कुछ चीजें एक जैसी होंगी, मिलता जुलता होगा उनका, जिस तरह से बड़े हुए, द फैमिली वैल्यूज, कल्चर. बट दिस इज नॉट with your aunts. Okay, because they have come from different families. So they bring different family values. Sometimes it coincides, sometimes it differentiates. When it coincides, it is an engagement. You like. When it differentiates, it's a conflict. हमारे यहाँ तो ऐसा होता था, Yes. हमारा रिवाज ऐसा है. ओके. बट चाचाओं में सब में एक ही रिवाज है, कोई अलग अलग नहीं है. Okay. Now all these are different dynamics. Now think of an industry where this 14 multiplied by 100 is the number of people working. 1400 लोग काम कर रहे हैं. Now this association is 8 to 5, 9 to 5, 8 to 10 hours a day for whatever duration they are connected with. Okay. Now, is it easy to run such show where there are 1400 diverse people? No, sir. No, it becomes difficult. And all these terms which I said, the engagement or conflict, collaborations, everything comes in picture. Right? So you need certain people who can help organization to continue its processes, its businesses, by keeping all these, 14 or 1400 people in sync. Like in your family, whosoever is the head of family, if your father is the eldest one, or if you have a grandfather, he becomes a pivotal person in your family to make sure that despite all these conflicts, छोटा मोटा जो भी है, बावजूद इसके, your family remains together. All 14 of you can stay together. Okay, that is how the head of the family will work. He will try to resolve issues. किसी को डांटेंगे, किसी को पनिश करेंगे, है ना, किसी को एनकरेज करेंगे, कभी कभी इंटरवीन करेंगे. Okay, this is the role of HR in an organization. पापा के छोटे भाइयों के लिए जब चाचियां ढूंढने निकले होंगे, है ना, तो someone would have started this process. Okay, so they would look for some good brides. तो HR में वो काम रिक्रूटमेंट का है. The recruitment team is same like your elder people in the family who would search for a good bride or good groom. Okay, so now once they found a good candidate, then they negotiate. सैलरी कितना लोगे, कब ज्वाइन करोगे. You go to your family side, they negotiate. शादी कब करेंगे, कहाँ करेंगे, बारात में कितने लोग आएंगे, क्या आयोजन करना है, कैसे करना है. Right? Then they get married. So you got an offer letter, appointment letter, and then
you join. So on board. नई बहू आएगी तो शुरू के 4-6 दिन, 8-10 दिन, 15 दिन तो समझने में लगेगा इन इंडस्ट्री। तो अगर कोई घर में उनकी एज का है या आसपास का है, so they will, help her to get acquainted with their family members. चाचा है, मामा है, ताऊ है, फूफा है, जीजा है, इनको घूंघट करो, इनको मत करो, इनको नहीं देखना है, इनसे बात नहीं करना है ना, ये पड़ोसी खराब है. Someone would help her to understand. In industry, this becomes induction. Onboarding and induction. धीमे 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 समझाएंगे घर के क्या रीति रिवाज है, क्या करना है, क्या नहीं करना है. शादी से पहले 9-9 बजे उठती थी, जब ससुराल में आने के बाद सुबह 5 बजे उठना पड़ेगा, है ना. जेठ जी के छोटे बच्चे हैं, उनको नहलाना धुलाना, स्कूल भेजना है. ये सब नया काम है, पहले कभी नहीं किया. सो यू नीड टू गेट एक्वाइंटेड विद दिस. तो घर के बड़े बुजुर्ग समझाएंगे ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना. So that is induction which happen with any new joining coming to the industry. They'll explain processes, rules and regulations, timings, and the nature of work, whatever he or she is required to do. Correct. So this is how the HR is related with your routine activities, your routine life. अभी ज्वाइन हो गया, नई बहू आ गई घर में, पहला 15-20 दिन तो कुछ करना नहीं है. Everything is very, very happy, very excited. All things, all good things are happening. रीति रिवाज चलेंगे 15 दिन, 20 दिन, महीना भर. इधर मंदिर लेके जाओ, उधर लेके जाओ, इधर लेके जाओ, रिसेप्शन करो, इस तरह को घुमाओ, दिखाओ, जान पहचान कराओ. Then she has to start operating in that particular family. Same thing is in the industry. To start working. Now, to ensure that the work is done properly, they are trained. जैसे यहाँ नई बहू को सिखाते हैं काम कैसे करना है, घर के क्या रीति रिवाज है ना. कुछ एक चीजें ऐसी होंगी जो आपके घर में बनती होंगी, उनका नहीं बनती होंगी. कुछ एक कस्टम ऐसे होंगे जो उन्होंने कभी नहीं किए होंगे, आगे करने पड़ेंगे. So the elder of the family will teach her, will explain her. So then this is another role of HR, training and development. लोगों को सिखाना और उनको इंडिविजुअल कैपेसिटी में डेवलप करना, सो दैट जो बिजनेस रिक्वायरमेंट है, ऑर्गेनाइजेशन जो रिक्वायरमेंट है, उसके साथ वो लोग कोइंसाइड कर पाए, है ना. सो यू रिक्रूटेड अ पर्सन, then you inducted, then training goes on. Simultaneously, he or she will start working also. तो सीखना, काम करना, सीखना, काम करना, सीखना, काम करना. कभी कभी सब्जी में नमक ज्यादा पड़ जाएगा, कभी कोई रोटी जल जाएगी, कोई पूरी नहीं फूलेगी, कोई गुलाब जामुन अंदर से कच्चा रह जाएगा, चाशनी कभी 1 तार की बनेगी, कभी 2 तार की बनेगी. ये सब होगा, है ना. When all this thing happens at the workplace, also similar thing happens. Sometimes you'll make mistakes in your reports. Sometimes you will default on your timeline. Sometimes you'll make mistakes. Sometimes you'll have a faulty product. ये सब होगा.
few things are visible, few things are not visible, जो बाद में पता चलेगा, है ना. पूरी फूली नहीं, वो देखने से मालूम पड़ेगा. गुलाब जामुन अंदर से कच्चा है, वो तोड़ने के बाद मालूम पड़ेगा. Similar thing is in restaurants. Certain things you see and you find out that this is not correct or this is up to the mark. सब्जी की खुशबू से मालूम पड़ जाएगा आज लजीज खाना बना है ना. रिपोर्ट देख के मालूम पड़ेगा that everything is in place the way it has to. Okay. So all these actions, activities, behaviors are observed, recorded, noted, है ना. कभी कभी उस नई बहू की तारीफ भी होगी, सास चार लोगों के सामने अड़ोस पड़ोस में बोलेगी बहू बहुत अच्छी है, अच्छा खाना बनाती है, वगैरह वगैरह, है ना. एक मिनट दीजिए, एक कॉल ले लो. Yeah, I'm sorry. So all these behaviors, actions, work, it gets observed
नोटेड, रिकॉर्डेड है। तो बहू क्या अच्छा कर रही है, क्या अच्छा नहीं कर रही है, हम्म? तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया कि नहीं, यही सीख के आई हो मायके से। दिस इज ऑल्सो अ फीडबैक। और आज खाना बहुत अच्छा बनाया है, हम्म? या गुलाब जामुन बहुत मुलायम बने हैं, दिस इज ऑल्सो ए फीडबैक। ओके, सेम थिंग इज एट द वर्क फ्रंट ऑल्सो। सो वॉट एवर यू आर डूइंग, you get feedback about it. Okay, so the process in industry we call it as an appraisal system, yeah, performance management system. आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या करना चाहिए था, कितना किया, किस तरह से किया, all this are observed and reviewed. Okay, and accordingly you are appraised. साल 6 महीने में एक बार आपके साहब लोग, बॉसेस लोग बुला के they speak. Okay, so this is the third area. So recruitment, onboarding, training and development, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, अप्रेजल। अच्छा, काम करते करते कभी गलती भी होगी। नई बहू है, अलग परिवार से आई है, अलग शहर से आई है, पढ़ी लिखी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, समटाइम्स इट इज ओवर क्वालिफाइड, समटाइम्स अंडर क्वालिफाइड, समटाइम्स इट इज लव मैरिज, समटाइम्स इट इज अरेंज मैरिज, so there are various permutations and combinations. So it may happen that there may be certain areas which are gray, मतलब जैसा चाहिए वैसा नहीं है, हमारे परिवार के संस्कारों के हिसाब से नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, एट हर पेरेंट्स प्लेस इट वॉज अ वेल टू डू फैमिली, तो सुबह जल्दी उठने की जरूरत नहीं था, घर में काम वाले थे, नौकर चाकर थे, तो इनको करने की आवश्यकता नहीं थी। तो ऑल दिस थिंग्स बाय हैबिट शी डिड नॉट हैव। ओके, नाउ कमिंग टू दिस फैमिली, ऑल दिस थिंग्स आर टैबू। अरे रे, जल्दी उठना पड़ेगा, घर का काम खुद करना पड़ेगा, ऐसे कपड़े नहीं चलेंगे, यू नो। सो समटाइम्स there'll be error, there'll be mistakes. There are certain things you do out of frustration, out of negligence, है ना, intentionally also, unintentionally also. बहुत बोलते हैं लो आज जानबूझ के रोटी जला देती हूँ, 2 दिन जली हुई रोटी खाएंगे तो अपने आप अकल आ जाएगी, ठीक है। काम के टाइम में बॉस बोलता है रोज किस किस किस, एकदम एन मोहन पे गलत रिपोर्ट दे दे, हम तो गाली देखा जाएगा बाद में। घर में इंपॉर्टेंट फंक्शन था, बहुरानी बीमार हो गई, आज पेट में दर्द है, सर में दर्द है, तबीयत ठीक नहीं, जानबूझ के, आई मीन रीजन है सच। इंपॉर्टेंट ऑडिट था, छुट्टी ले ली, दैट इज ऑफिस से। ओके, मायके जाने के लिए 1 दिन बोला था, 5 दिन तक नहीं आई। एम्प्लॉय 1 दिन की छुट्टी बोल के 4 दिन गायब, फोन स्विच ऑफ, नॉट ट्रेसेबल, नॉट रीचेबल। डिपार्टमेंट हेड परेशान है, इधर सासू माँ परेशान है, पतिदेव परेशान है, कहाँ चली गई, 1 दिन का बोला था, 5 5 दिन हो गए नहीं आई। ऑल दीज आर डिसिप्लिनरी मैटर्स, है ना, ये सब अनुशासन से संबंधित चीजें हैं। सो देर आर इनडिसिप्लिन, so you need something to, look after the disciplinary matters. So that is another role of HR, managing discipline in the
organization and dealing all these indisciplined situations, है ना? तो घर में फिर दोनों समझन आपस में बात करेंगी, पति पत्नी को समझाएंगे, घर में कोई और उनकी एज की लेडी होगी, दे ऑल कम एंड ट्राई टू काउंसल, मतलब जो भी सिचुएशन है. सो दैट इज अनदर रोल ऑफ एचआर इन द इंडस्ट्री. एम आई मेकिंग सेंस? समझ में आ रहा Yes, sir. है? जैसा हवा में ऐसा लग रहा है क्या? नहीं, I'm getting. सो दिस इज अनदर रोल ऑफ एचआर. अप्रेजल हो गया, सब हो गया. कभी मनमुटाव हो गया, झगड़े हो गए, पति पत्नी में झगड़ा हो गया, चाची चाचा में झगड़ा हो गया, किसी चाचा को बेलन से मार दिया, चाची लूटना मनाना, ये सब. सो ऑल दीज थिंग्स हैपन इन द इंडस्ट्री आल्सो. देयर विल बी कॉन्फ्लिक्ट्स, है ना? देयर विल बी मेजर issues, behavior related, workplace indiscipline related. Sometimes it is very severe. So HR is also instrumental in resolving such issues. Okay. फिर घर में नई बहू तो मिलने रिश्तेदार आएंगे, पड़ोस पड़ोस वाले मुंह दिखाई, और जो भी आएगा वो कुछ ना कुछ बोल के जाएगा, अच्छा या बुरा, है ना? अगर अच्छा है तो ठीक है, बुरा है तो सबको बुरा लगेगा. दिस अगेन इट्स ए बिहेवियर थिंग, बिकॉज आप एक अलग कल्चर से आए, अलग कल्चर में सेट होने का कोशिश कर रहे हो, चीजें ऐसी है जो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होंगी. सो देयर इज अ टर्म कॉल ऑडिट. ये आपके फाइनेंस में भी आता है, ऑडिट, है ना? HR audit, this is another area where someone will come, look into your systems, look into your processes, और कहाँ कहाँ डेविएशन है ना? बड़ों के सामने बहू घूंघट नहीं निकालती है, प्रोसेस डेविएशन होना चाहिए लेकिन नहीं करती. क्यों? मायके में ऐसा रिवाज नहीं था, मॉडर्न ख्यालों की है ना? शहर में रही है, तो there will be XYZ reasons for this, but the ultimate result is the behavior, which is a deviation. Yeah, तो audit. Then there is one area, आप जिस सोसाइटी में है, जिस सिटी में है, जिस भी कल्चर को फॉलो करते हैं, उसका एक लिखित या मौखिक या अंडरस्टूड कॉन्स्टिट्यूशन है ना? आपका एक फैमिली वैल्यू है, आपका एक फैमिली कल्चर है. मैं वेजिटेरियन हूं, मेरा फैमिली वैल्यू वेजिटेरियन है ना? स्पिरिचुअल है, पूजा पाठ में बिलीव करते हैं. सो दिस इज माय 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 फैमिली कॉन्स्टिट्यूशन. इट्स नॉट रिटन एनीवेयर, बट दिस इज हाउ इट इज. ओके. Similarly, at your family, at any place, there has to be a constitution. Adherence to that constitution is everybody's responsibility, है ना? मतलब आपके फैमिली वैल्यूज जो भी है उनको मानना सबकी जिम्मेदारी है. घर में सबसे छोटा बच्चा होगा उसकी भी, और जो घर में सबसे बुजुर्ग होगा उसकी भी. जैसे रात में जल्दी 10 बजे सो जाना, तो इट इज एप्लीकेबल टू एवरीबडी. बच्चों को कभी कभी रियायत हो सकती है, एग्जाम का प्रिपरेशन है तो देर तक जगना है तो छूट है, लेकिन आप बोलोगे नहीं मुझे रात में पिक्चर देखने जाना है 9 से 12, तो उसके लिए परमिशन नहीं है, है ना?
एक्सेप्शन होगा, कभी साल में एक आध बार रिजल्ट आया तो, अदरवाइज देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन। लड़की अकेली बाहर नहीं जाएगी, कहीं भी हो 9 बजे तक घर में आ जाने का। दिस इज ऑल अनरिटन फैमिली कॉन्स्टिट्यूशंस। Similarly, in the industry also, there are some acts and rules to operate it. तो हर जाति, धर्म, समुदाय, परिवार, समाज में लिखित या मौखिक या माने हुए कुछ ना कुछ मापदंड होंगे, और उस समाज से जुड़े सभी लोगों को उनको मानना है ना। Similarly with the industry, the only difference is here it is written. As far as industry is concerned, it is written. तो उसको मानना हर एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है। जैसे आपके घर के कायदे कानून मानना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, ऐसा इसको मानना हर एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है। I think, sir, you have to check your camera. Like it's not visible. Yes, yes, sir. Yeah. So in case Dipti somewhere, like if camera is not is missing, so you can always request, right? Okay. तो अभी देख रहे हैं सर? Yes, sir. Okay. So in industry, there are written rules, acts, and all organizations are governed by those rules and acts. Okay. And to ensure that everybody is following those rules, every industry is following the written constitution. समाज का हर व्यक्ति, हर नागरिक उसको फॉलो कर रहा है, उसको चेक करने के लिए कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, है ना। लड़की घर से भाग के शादी कर लेती तो समाज में उसको बहिष्कार कर देते हैं, है ना। इट इज अंडरस्टूड एट नॉट ए वेरी वेलकमिंग बिहेवियर, लड़की या लड़का कोई भी हो। ओके, सो इट इज अंडरस्टूड दैट इट इज नॉट ए वेरी वेलकमिंग बिहेवियर। Similarly, in the industry, whatever is mentioned in the rule book, in various acts, various rules, if you are not abiding those rules, it is not a welcoming behavior and you are penalized for it, है ना। तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लायंस। कॉम्प्लायंस मतलब एक कानून है, हमको उसका पालन करना है, तो उस पालन करने को हम बोलते हैं कॉम्प्लायंसेस। So this is another area, another vertical of HR. It's called statutory compliances. Yeah, compliances. All good? Yes, sir. So compliance is another vertical which belongs to HR. Statutory compliances. तो किसी इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो भी गवर्निंग एक्ट्स हैं, रूल्स हैं, उनका फॉलो हो रहा है कि नहीं, वो ठीक से एप्लीकेबल है कि नहीं, इंडस्ट्रीज और नॉर्म्स उसके हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं, ये सब देखना एचआर का काम है ना।
तो अगर घर के बच्चे देर से आते हैं तो घर का बुजुर्ग बच्चों को फटकार लगाता है, डांटता है, बाहर जाने से मना कर देगा, ये सब होता है ना। सो दीज आर द रिपरकेशन ऑफ नॉन कॉम्प्लायंस। जो नियम है अगर आप उसका पालन नहीं करते तो उसके प्रत्याघात हैं, रिपरकेशंस, है ना। So sometimes they are as severe at closing of the unit. मतलब कभी कभी जब आप हद से ज्यादा बिगड़ जाते हैं तो जायदाद से बेदखल कर दिया जाता है ना। आज से हमारा इसका कोई संबंध नहीं है, या आज से इसका घर से बाहर निकलना बंद, या जब भी ये घर से बाहर जाएगा या जाएगी अकेले नहीं जाएगा। इसके दोस्तों की संगत छुड़वा दो। तो तमाम तरह के बंधन या restrictions would be imposed to ensure that compliance is met. So same thing is in the industry also. So this is another vertical of HR, compliances. Okay. अच्छा, दिन भर आदमी घर में, बेचारी जो बहू है, बच्चे हैं, चाचा चाची जो भी है, दादा दादी पापा मम्मी, ये पूरा साल अगर कमाते रहेंगे, धंधा देखते रहेंगे, तो उब जाएंगे ना। बोर होता है कि नहीं होता है? अगर तुमको सुबह शाम खाली पढ़ाई 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 ऐसा बोलेंगे, बोर होता है? Yes, sir. हाँ, होता है। तो छोड़ देने का, पढ़ाई क्यों कर। सर अब आदत होगी पढ़ने की, अब आदत हो गई है पढ़ने की, इसलिए ऐसे होता है कि बिना पढ़े फिर मन नहीं लगता। लेकिन काम में ऐसा था कि काम में आदत नहीं होती है। नहीं, काम में भी आदत, लॉकडाउन जब हुआ था, वी वांट कि हमारे फादर्स घर पे रहे पहले, अब बिफोर लॉकडाउन वी वांट कि हमारे फादर्स हमारे साथ रहे, हमारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, बट व्हेन अब लॉकडाउन लगता है कि हैपेंड बाहर वी जाए तो जस्ट अच्छा वांट कि दे है। वेंट, थोड़ी दे देर शुड तो गो टू छोड़ो। द शॉप। थोड़ी देर तो छोड़ो। हाँ, तो फिर सर है ना, ये उनका भी मन यूट्यूब पे, करता था कि घर पे ना रहूं, मैं शॉप पे जाऊं ऐसा। सर ने यूट्यूब पे रिकॉर्ड करके लाइव यूट्यूब पे चल रहा होगा, पापा देख रहे होंगे ना। नहीं, my father loves to work, so he's just like, I'm workaholic, and you can say that. Okay, just give me a minute. Yes. तो अंग्रेजी में कहावत है, ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक जैक ए डल गाय, है ना। तो अगर दिन भर काम करते रहेंगे, दिन भर पढ़ाई करते रहेंगे, तो कभी कभी ऊब जाते हैं, है ना। कभी कभी ऐसा लगता है हम खाली काम ही कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। सुबह आएंगे शाम को चले जाएंगे, सुबह उठा किताब लेके बैठ गए, शाम को उठे किताब बंद किया सो गए। 8 घंटे किताब के सामने है, फिर भी पढ़ाई जैसा कुछ नहीं। याद कितना रहा शायद पता नहीं, है ना। मतलब हम प्रेजेंट तो हैं, इंगेज नहीं है, Yes. वी आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस। सो टू प्रोवाइड एन एनवायरमेंट, अगर घर में हर आदमी गुस्सा करता होगा तो घर का माहौल कैसा होगा? डिपेंड कौन गुस्सा कर रहा है। कोई भी कर रहा हो, छोटा हो बड़ा हो। छोटा तो फिर इग्नोर कर देंगे कि हाँ ठीक तो है, वो थप्पड़ ठीक है ना कर रहा छोटे है, को तो। और बड़ा कर रहा हो तो फिर द सराउंडिंग इज विद है ना, रोएगा फुल तो ऑफ एक और टेंशन, पड़ेगा, ऐसा बोल के छोटे को तो चुप करा सकते, बड़े को क्या करोगे? और whatever they say we will perform that activity or do that work. तो ऐसे ही एकदम दिन भर अपनी हम ऐसे गरीब सी शक्ल बनाए घूमता रहे,
only option to ignore him or her. वो घर का आदमी है, कैसे इग्नोर करूं? We will ask what happened, what you want from us, what happened to you, why are you so upset or feeling अच्छा, sad. ऐसा होता है घर में, होता है कि नहीं होता? होता है. होता है ना? 4 हो या 14 हो, घर में ऐसा तो रहेगा ना, कभी कभी किसी न किसी का मूड, Yes. है ना? किसी का मूड तो हमेशा खराब रहता है, बट कुछ ऐसे तो कभी कभी मूड खराब होता है। अच्छा, कोई ऐसा होता है इसका मूड कभी खराब भी नहीं होता हाँ. है, वो हमेशा चेयरफुल दिखेगा आपको। हाँ. ऐसे भी लोग होते हैं, Yes. कम वॉट में कितना भी समस्या हो, कुछ भी हो, बट वो हमेशा चेयरफुल दिखाई देगा। Yes. अभी कल किसी का फोन आया था, मैंने उसको वापस कॉल बैक किया तो ट्रू कॉलर पर लिख के दिखाया मूड खराब है। तो मैं उसको पूछा बाद में, जब उससे बात हो, बोला अरे तुम्हारा नाम ऐसा मूड खराब है लिख के आता है, इतना खराब मूड लेके कैसे जिंदा रहते हो? तो बोले मैं नहीं हूँ, मैं जब घर जाता हूँ शाम को बच्चा फोन लेके खेलता है ना, तो उसने ऐसा कुछ कर दिया होगा। तो बोला उस बच्चे का इतना मूड खराब क्यों रहता है, कभी टाइम पे घर चले जाया करो। ओके, सो विद द डाइवर्स पीपल, इतना सारा नंबर है, तो हर आदमी हमेशा अच्छे मूड में रहकर जरूरी नहीं है ना। लोग फिजिकली प्रेजेंट होंगे बट मेंटली शायद एब्सेंट होंगे। हम्म? मतलब अवेलेबल तो है, एंगेज नहीं। Yes. घर में कुछ लोग Absent होंगे minded. एब्सेंट माइंडेड, पागल नहीं है लेकिन वो, लेकिन उस परिस्थिति में वो प्रेजेंट नहीं है, Like है ना? we sit in the class, sometimes we sit in the class, but we thought about हाँ, other things, आज वो आया नहीं। dream about other things. करेक्ट करेक्ट। घर पे क्या करना है जाके. आज वो आया नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया, आज उसे लेट क्यों हो गया आने में। सो सेम थिंग इज विद द इंडस्ट्री ऑल्सो। एवरीबडी विल नॉट बी 100% available for the work, though they are coming to the plant, okay, though they are doing their duties, though they are appraised, everything is done, but then at times they are not into the moment, है ना? घर में कोई फंक्शन आपने ऑर्गेनाइज किया, शादी की तैयारी, फूफा जी हमें से नाराज ही रहेंगे, है ना? अब कोई रीजन नहीं है, बट ठीक है, फूफा जी हैं। तो ऐसे कई फूफा इंडस्ट्री में मिलेंगे जो बिला वजह नाराज होंगे, ठीक है ना? लेकिन हमारा काम इफेक्ट ना हो, कंपनी का प्रोडक्शन प्रोसेस इफेक्ट ना हो, इसके लिए हमको लोगों को इंगेज रखना पड़ता है ना। सो एम्प्लॉय एंगेजमेंट इज अनदर एरिया दैट कम्स अंडर एचआर। एम्प्लॉय एंगेजमेंट, तो घर में जितने भी लोग हैं, 10 12 15, जब भी कहीं कोई फंक्शन है, सेलिब्रेशन है, तो सबको उसके हिसाब से कुछ ना कुछ काम दे दिया जाता है कि भैया आप मंडप देख लेना, आप कुर्सी देख लेना, आप टेंट देख लेना, आप खाना देख लेना, है ना? भाभी को बोल दिया भैया आप रिश्तेदारों को निमंत्रण दे देना, बच्चों को बोल दिया तुम सोसाइटी मोहल्ला मचाओ, बैंड के साथ नाचना, बारात में तुम आगे खड़े रहना। Everybody is allotted some of the other responsibilities to ensure that everybody is engaged. And the purpose is they all remain together. तो जब तक उस फैमिली में है, उसका हिस्सा है, तो हर अच्छी बुरी चीज में वो कंट्रीब्यूट कर सके, दैट इज द पर्पस ऑफ दिस एंगेजमेंट। ओके, सो सिमिलरली एम्प्लॉय एंगेजमेंट इज अनदर एरिया दैट कम्स अंडर द पर्व्यू ऑफ एचआर। ओके, नाउ दिस कैन बी बाय वेरियस मीन्स, ये अलग अलग तरह से किया जा सकता है। सो वो जब कोर्स चलेगा डिटेल में, तब इन डिफरेंट सेशंस वी विल अंडरस्टैंड व्हाट दिस एंगेजमेंट मीन्स। बट सेलिब्रेशंस, रिकॉग्निशन, घर में कुछ अच्छा हुआ, किसी ने कुछ अच्छा किया, बच्चे का रिजल्ट अच्छा आया, बिजनेस में कोई अच्छा ऑर्डर मिल गया,
सो यू ऑल सेलिब्रेट, है ना। 10th में 12th में फर्स्ट क्लास आया होगा, अच्छे परसेंटेज आए होंगे, तो घर में सबने सेलिब्रेट किया होगा। सो यू सेलिब्रेट ऑल द सक्सेस। कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई बीमार है, कोई महीना लीन चला गया बिजनेस में, कभी अच्छा इनकम नहीं हुआ, किसी की डेथ हो गई, सो ऑल बैड थिंग्स ऑल्सो हैपन इन लाइफ ऑल्सो, इन द बिजनेस ऑल्सो। सो ऑन ऑल सच ओकेजन्स यू ऑल स्टे टुगेदर, काउंसिल ईच अदर, संभाल लिया एक दूसरे का काम, है ना। सो दिस इज व्हाट द एंगेजमेंट इज। अच्छा, ऐसा होता है कभी कि आस पड़ोस में कहीं कोई फंक्शन हो, हम्म, और आपको इनविटेशन ना हो, ऐसा होता है? होता है, होता है। ओके, तो कैसा लगता है? So being a kid, we want कि हम जाएं, but being an elder member, we just to understand the situation कि we are not invited, so we want हाँ, बुरा don't. लगता है ना, हाँ, यार पड़ोसी हमको ही नहीं बुलाया, देखो बिटिया की शादी कर दी, हमसे पूछा भी नहीं। मतलब तुमसे क्यों पूछे, लेकिन फिर भी लगता है ना। आजू बाजू में हम जहां रह रहे हैं वहां कूड़ा करें, गंदगी करें, कचरा करें, तो चलेगा? आस पड़ोस में लड़ाई no, झगड़ा no. नहीं ना, मारा मारी, होली में गोबर फेंक दिया बाजू वाले घर में, दिवाली में बम डाल दिया, रॉकेट भेज दिया उल्टा, नहीं ना। So we always want that there has to be an harmony in the community। हम जहाँ काम कर रहे हैं, हम जहाँ ऑपरेट कर रहे हैं, उस एरिया में हार्मनी रहना चाहिए, है ना, अच्छा वातावरण। Sir, I have a question. Like हम्म। in the family, we can engage the members by giving them some other works to do. But in an organization, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, तो उसमें अगर हम अ, एक पर्सन को रिकग्निशन दे रहे हैं उसके अच्छे काम के लिए, तो ऐसा तो पॉसिबिलिटी जरूर होगा कि एक ग्रुप ऐसा होगा जो नहीं चाहता होगा कि उस पर्सन को कुछ मिले ऐसा रिकग्निशन या कुछ। तो हम उन्हें कैसे एंगेज करेंगे उस इवेंट में? अच्छा क्वेश्चन। इंडस्ट्री में चीजों को मेजर करने के लिए ऑब्जेक्टिव्स है। आप यूं ही किसी को रिकॉग्नाइज नहीं करते ना, कुछ डिफरेंशिएशन है जिसकी वजह से आप उसको रिकॉग्नाइज करते हो, अच्छा या खराब दोनों। अगर खराब है तो भी आप लोगों को बताते हो कि उसने ऐसा किया, इसका ये रिपरकशन है। अच्छा है तो उसने ये अलग किया, इसके लिए उसको रिकॉग्निशन। जहां तक एंगेजमेंट का सवाल है, कुछ प्रोग्राम ऐसे होंगे जो अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशन होंगे, है ना। जैसे आपके घर का जो रीति रिवाज है ना, वो जो आपकी मम्मी को एप्लीकेबल है वो आपकी सबसे छोटी चाची को भी एप्लीकेबल होगा। मतलब सबको सेम चीज बताया जाएगा कि ये ऐसा ही होता है। इंडस्ट्रीज में हम उसको वैल्यूज बोलते हैं, नैतिक मूल्य। तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है। 100% एम्प्लॉयज मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट माय फैमिली वैल्यूज आर, व्हाट माय ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यूज। ओके। कुछ एरिया ऐसा होगा जहां पे हम वॉलंटरीली एंगेजमेंट देखेंगे। सबको सब चीज अच्छा नहीं लगता है, इसलिए मेरे पास जो एंगेजमेंट के ऑप्शंस होंगे ना, वो भी अलग अलग होंगे। कहीं फिजिकल होगा, कहीं इंटेलेक्चुअल होगा, कहीं स्पिरिचुअल होगा, ऐसा अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होगा, सो दैट आई कैन कैटर मैक्सिमम पीपल। आप हर आदमी को खुश तो नहीं कर सकते, लेकिन आप ऑप्शंस दे सकते हैं जिससे जिसको जिस कैटेगरी में सेट होना है वहां हो जाएगा। सपोज
आपको पढ़ाई अच्छा लगता है, यू लाइक रीडिंग, डाइवर्स सब्जेक्ट पे यू लाइक रीडिंग। ओके, अच्छा, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे इंडस्ट्री में या कम्युनिटी में जिनको ही पसंद होगा, पढ़ाई पढ़ना अच्छा लगता होगा, किसी जमाने में आदत रही होगी, लेकिन अब काम की वजह से, शेड्यूल की वजह से नहीं कर सकते। ओके, तो उनका इंटरेस्ट तो अभी भी है, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा है। तो एज एन एचआर आप क्या कर सकते हैं? एज एन एचआर आप एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे सकते हो जहां पे कोई एक ऐसा जो पढ़ रहा है अभी भी, 25 ऐसे हैं जो पढ़ना चाहते थे नहीं कर पा रहे हैं, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म देंगे जहां पे 26 के 26 एक साथ आएंगे, जो पढ़ता है वो पढ़ेगा, उसने क्या पढ़ा वो बाकी 25 को शेयर करेगा। द मॉन्क हू सोल्ड अ फरारी, एक किताब है, सपोज आई रेड दैट। आई नो दैट देयर आर अदर पीपल आल्सो हु लव रीडिंग, बट बिकॉज ऑफ देयर बिजी शेड्यूल दे डोंट गेट टाइम टू रीड नाउ, आदत नहीं है, छूट गया है। सो देन आई ऑर्गेनाइज monthly session on book review. Okay, where I will present the book. All the interested people will come and attend that session, so they get the learning. और उसमें कभी इच्छा होगा तो मेरे से बुक बोरो करके पढ़ेगा, पीडीएफ मिल जाएगा, ऑडियो बुक मिल जाएगा। दिस इज वन वे ऑफ एंगेजमेंट। सो वन सच ग्रुप इज अटेंडेड, तो महीने का 12 सेशन, लोगों को उनके काम का एंगेजमेंट मिल गया। कोई ऐसा जो एथलीट है, उसको भागना दौड़ना अच्छा लगता था स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में, काम में लग गया, अभी नहीं कर सकता, कहाँ दौड़ेगा? तो साल में 3 महीना जब विंटर का टाइम है, तो कुछ आउटडोर एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज किया, फुटबॉल मैच, क्रिकेट मैच, शॉर्ट रेसेस, कुछ फन एक्टिविटी, टग ऑफ वॉर, करेक्ट। तो एक ग्रुप ऐसा हो गया जो वहां एंगेज हो गया, तो जो पढ़ना चाहता था वो पढ़ने में चला गया, खेलना चाहता था खेलने में चला गया। फेस्टिवल है, उसको सेलिब्रेट करने के लिए हमने एक प्लेटफॉर्म दे दिया। तो जो लोग कल्चरली एक्टिव थे, कोई अच्छा गाना गाता होगा, कोई अच्छा डांस करता होगा, कोई अच्छा स्क्रिप्ट लिखता होगा, उसको वो प्लेटफॉर्म मिल गया। तो 80-90% क्राउड को आपने कुछ ना कुछ एवेन्यूज प्रोवाइड कर, है ना। बाकी जो रह गए उनको वन ऑन वन हम कुछ टास्क दे सकते हैं। बी द बडी, किसी को ऐसा बात करना अच्छा लगता है, तो उसको हमने एज ए इंटरनल रिसोर्स डेवलप कर दिया ट्रेनिंग के लिए। तो मेरा जो भी हॉबी है, इंटरेस्ट है, शौक था किसी जमाने में, किसी वजह से नहीं कर पा रहा था मैं, सो ऑल दिस थिंग्स, ऑल दिस प्लेटफॉर्म, बीइंग एन एचआर, आई कैन प्रोवाइड टू माय पीपल, whosoever is interested will come and fit in those places. फिर भी 10-12% लोग ऐसे होंगे जो इसमें से किसी में सेट नहीं होते होंगे, उनका आप कुछ नहीं कर सकते, उनको उनके हाथ पे छोड़ देना चाहिए, है ना। यहाँ कोई ऐसा कॉमन इलेक्शन आएगा 5 साल में एक बार, तो इनको उधर लगा देने का। तुम पॉलिटिकल एवेन्यूज का ध्यान रखो, इधर कोई न्यूज़ नहीं होना चाहिए। तो जितने फूफा लोग हैं उनको ऐसे काम में लगा सकते। कोई ऐसा होगा जिसको सोशल एक्टिविटीज में बहुत इंटरेस्ट होगा, कुछ करूं, समाज का भला करूं, सोसाइटी का भला करूं। तो ये जितने भी अभी हमने बात की, सब इंटरनल एंगेजमेंट है। हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं, तो मतलब तुमने जो सवाल किया उसके पहले हम जो बात, आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस सर, यस सवाल का जवाब। मिल गया record। तो हम जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं, हम जिस मोहल्ले में रहते हैं, हम जिस एरिया में रहते हैं, तो हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है कि उस एरिया को अच्छा बनाए, वो मोहल्ला साफ सुथरा रहे, मतलब झगड़ा वगड़ा नहीं होना चाहिए, आस पड़ोस की जो फैमिलीज है वो आपस में हिल मिल के रहें, है ना। वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, संप्रदाय का हो, जो भी है, वो जिस भी चीज को फॉलो करता हो, बट प्रयास कम्युनिटी का ऐसा रहता है कि उस एरिया में सौहार्द बना रहे, हार्मनी बना रहे, है ना। इसी तरह से इंडस्ट्रीज जब कहीं फंक्शन करती है ना, तो एक फंडामेंटल लाइन है
व्हेन वी प्रोड्यूस वी पॉल्यूट। हम जब कुछ भी प्रोड्यूस करते हैं ना तो हम पॉल्यूट करते हैं चीजों को, एनवायरमेंट को, वहां के आसपास की कम्युनिटी को, लोकालिटी को डिस्टर्ब करते हैं, है ना। मतलब एक एक ढर्रे में आप जी रहे थे, अचानक से आपकी मोहल्ले में बनारस का आपके जोन का मेयर आपके मोहल्ले में आ गया। आप एक आराम से अच्छी जिंदगी जी रहे थे, अचानक से आपका पड़ोसी वहां का नगर पालिका का मेयर बन गया। तो जितना शांत मोहल्ला, अचानक से उसमें अफरा तफरी हो गई, लोगों का आना जाना बढ़ गया, है ना। पानी नहीं आ रहा है, लाइट नहीं है, रोड खराब है, तमाम चीजें अचानक से आपके मोहल्ले में गड्ढे लगेंगी। और कुछ टाइम के बाद में आपको लगेगा क्या न्यूसेंस है यार, ये रोज कोई ना कोई आता रहता है। तो यही हालत इंडस्ट्रीज की भी है। एक गांव है, एक एरिया है, अब तक शांत था, अचानक से एक बड़ा कंपनी आ गया। दिन भर बस चल रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, धुआं उगल रहा है, पानी गंदा, खेत में पानी छोड़ दिया, तमाम तरह के बवाल है ना। तो क्या होगा, ऐसे माहौल में क्या होगा? So people will get irritated, पीपल गेट और इरिटेटेड। वो तो कौन सा पीपल, स्प्रेड अंदर वाले या आउट, बाहर वाले? बाहर वाले जो सराउंडिंग में रह रहे हैं। है ना, पड़ोसी। जो मेयर बन गया उसको कोई इरिटेशन नहीं है ना, उसको तो मजा हो गया। यस। क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट आएगा? सर आई डिडंट गेट द क्वेश्चन। हाँ, आई सेड, तो अब इनके यहाँ रोज आना जाना बढ़ गया लोगों का आपके पड़ोस में, है ना। तो किसी दिन तुमको ऐसा लगेगा कि एक लड़का है, रोज आता है, काम उसे कुछ नहीं लेकिन रोज आता है और मुझे दिखता है, मेरे घर के आगे से अजीब, निकलता है तो सीटी बजाता हुआ निकलता अजीब इरिटेटेड। है ना। तो क्या करोगी? Firstly, I will talk to my parents, and ओके। secondly, the neighbors, um, about that boy. And if they do something well and good, and if they don't, then I directly talk with that guy. मतलब कुल मिला के बवाल होगा, झगड़ा वगड़ा भी हो सकता है। अच्छा, कुछ टाइम बाद तुम्हें वो लड़का पसंद भी आने लगेगा, ऐसा भी हो सकता है। हम्म? तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली इज द इंडस्ट्री ऑल्सो। जब नया नया इंडस्ट्री आएगा ना तो लोगों को नौकरी मिल रहा है, अच्छा लगेगा, धीमे धीमे न्यूसेंस बढ़ने लगेगा। हम्म? अगर कोई ऐसा प्रोसेस इंडस्ट्री है तो गंदा पानी छोड़ दिया रोड पे, पीछे खेत है उसमें पानी छोड़ दिया, चिमनी से धुआं निकल रहा है, वर्कर लोगों का आना जाना लगा हुआ है, तो उससे आजू बाजू के एरिया में कुछ असंतोष हो सकता है ना। एचआर में इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, ईआर या आईआर, एम्प्लॉय रिलेशन या इंडस्ट्रियल रिलेशन। So there are always conflicting situations outside the premises. गांव का सरपंच, वहां का मेयर, खेत वाले, किसान, है ना। एक आदमी से आप सर्विस ले रहे हो, वही सर्विस दूसरा आदमी भी दे रहा है, तो वहां के बवाल करेगा, उसका गाड़ी क्यों लगाया, मेरा क्यों नहीं लगाया, उसके पास से माल ले रहे हो, मेरे से क्यों नहीं ले रहे, उसके आदमी तुम्हारे काम करते मेरे क्यों नहीं करते। ठीक है। अच्छा, अगर लड़का तुमको पसंद आ गया तब तो कोई शिकायत ही नहीं है, लड़का पसंद नहीं है तो ही बवाल है। तो जिसके साथ आपने काम दे दिया वो तो खुश हो जाएगा, उसको कोई शिकायत नहीं है। लेकिन उसके अलावा बाकी चार लोग ऐसे हैं जो समस्या उत्पन्न करेंगे, है ना। सो दिस इज ऑल्सो a gamut under HR, industrial relationship, IR, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का रिलेशन,
एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर का रिलेशन, या एम्प्लॉयर का कम्युनिटी के साथ रिलेशन। तो आसपास की ग्राम पंचायत, उसका सरपंच, इसके कॉन्ट्रैक्टर, कोई दादा टाइप होगा, भाई टाइप होगा, उन सबके साथ में अपने को रिलेशन बनाना और चीजों को स्मूथली ऑपरेट होने देना। मतलब वो लड़का भले रोज आता हो, सीटी बजाता हो, लेकिन उससे तुम्हारा कॉलेज जाना बंद नहीं होना चाहिए, तुम्हारे रूटीन में फर्क नहीं आना चाहिए, तुम्हारे ऊपर दूसरा कोई अननेसेसरी इफेक्ट नहीं आना चाहिए। When I'm saying तुम्हारा, I'm just giving an example, just to make it easy to understand. So this is managing all these situations is industrial relationship. IR बोलते हैं इसको, ER या IR, industrial relation या employee relation. So this is also a purview of HR. Okay, then when you put up an industry, your basic purpose is to generate profit, पैसा कमाना, इसीलिए धंधा करते हैं ना। Yes. कोई भी बिजनेस, कोई भी जॉब का बेसिक पर्पज है अपने को प्रॉफिट चाहिए, मुनाफा, Yes. पैसा बनाना है, कमाना है। Hmm. ओके, तो जब आप पैसा कमाते हो, आप इन इंडस्ट्री डालते हो, तो आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट के प्रति भी जिम्मेदार हो, है ना। यू आर रिस्पॉन्सिबल, एज आई सेड, व्हेन यू प्रोड्यूस यू पॉल्यूट। आप जब कुछ भी बनाते हो, उत्पादन करते हो, तो आप नुकसान पहुंचाते हो पर्यावरण को, वहां के रहन सहन को, वहां की आबो हवा को, वहां के लोगों को कुछ ना कुछ इनकन्वीनियंस होगा, है ना। मतलब उस इंडस्ट्री का उस समाज के प्रति भी कुछ उत्तरदायित्व बन जाता है। आई एम अर्निंग प्रॉफिट फ्रॉम दिस एरिया by disturbing the surroundings physically, mentally, environmentally. So I owe them, मतलब कुछ ऐसा है जो मैंने उनसे लिया है, and I must give them back. I must give something back to the society. कॉर्पोरेट में या इंडस्ट्रियल में हम इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR, है ना। मतलब अगर बनारस शहर में आपका परिवार एक अच्छा बिजनेस कर रहा है, तो जो भी बड़े लोग हैं, जो भी सेठ लोग हम बोलते हैं ना, तो हम हमेशा ये आशा करते हैं कि उनको कुछ ना कुछ समाज सेवा के काम करने चाहिए। ये सुनो, इतना पैसा है, गरीबों में क्यों नहीं बांटता है? Yes. है ना। इतना पैसा एक अस्पताल क्यों नहीं खुलवा देता है? Yes. ऐसा हम आमतौर पर बात करते हैं ना। Yes, sir. इतना पैसा है लेकिन फिर भी भिखारी को 1 रुपया नहीं देता है। वी ऑलवेज यूज सच टर्म्स। कभी रास्ते पे देखते होंगे हम, कोई आदमी गाड़ी में जा रहा है, कोई भिखारी भीख मांगता है, आदमी उसको भगा देता है, एंड देन वी फील फ्रॉम इनसाइड, इतना बड़ा गाड़ी लेके चल रहा है, उसको 2 रुपये नहीं दे सकता है। ऑल दिस साइक दैट वी फील। So similar thing is with the industries also. Then when you start an organization, when you start an industry, you start making profit, you get a brand, you start earning. तो आपका एक जिम्मेदारी बन जाता है कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उसको आप कुछ वापस दें। सो दैट बिकम्स कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। समाज के प्रति किसी कॉर्पोरेट की क्या जिम्मेदारी है ना। तो उसके लिए आई थिंक 2003 में एक एक्ट भी आया, जिसमें सरकार ने उसको मैंडेट कर दिया कंपल्सरीली कि आपके प्रॉफिट का 3% आपको समाज सेवा के कामों में खर्च करना है ना। सो दिस एंटायर CSR फ्रेमवर्क इज ऑल्सो पार्ट ऑफ HR इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस। वो चाहे एक सेपरेट विंग के थ्रू काम करता हो, बट बाय एंड लार्ज इट इज
covered or it is seen or it is taken care by the HR, human resource department. So this becomes another vertical. आसपास के लोगों का ध्यान रखना, CSR. तो अब तुमने सोचा कि यार पैसा वैसा है तो अपन चैरिटी करते हैं, महीने में एक दिन लंगर डाल दिया, भंडारा कर दिया, जागरण करा दिया, सुंदरकांड का पाठ रख दिया, है ना, अखंड रामायण कर दी, समाज सेवा. ऐसा चालू किया पिताजी ने. तो हर महीने 2 महीने में ऐसा एक कार्यक्रम होता रहता है. तो किसी दिन तुमको ऐसा लगेगा ना कि यार पापा इस सबके लिए करते हो, हमें रोज घर में वही रोटी सब्जी, हमारे लिए कोई लंगर नहीं, हमारा कोई भंडारा नहीं, हमें ये वही खुद ही बनाओ खुद ही खाओ, है ना. Yes. तो उसके लिए एम्प्लॉयज भी बोलेगा ना, क्या उधर स्कूल खुलवा दिया, उधर घर बनवा दिया, उधर 2 करोड़ रुपया डोनेशन कर दिया, तो जिसके से कमा रहे हो उसका क्या, उनके बारे में कब सोचोगे. सो देर इज एन एरिया कॉल्ड एम्प्लॉय वेलफेयर. एम्प्लॉय वेलफेयर. पिताजी बोलेंगे हाँ बेटा बात तुम्हारी सही है, तो तुम जब पास हो जाओगी ना तो तुम्हें एक हवाई जहाज ला के देंगे. एक ऐसा वेलफेयर भी हो सकता है जो तुम्हें तो पता है कि तुम पास हो जाओगे, लेकिन पता है कि हवाई जहाज कभी नहीं आएगी. या ऐसा होगा कि ठीक है हफ्ते में एक दिन या महीने में एक दिन बाहर खाने ले जाएंगे, घर में कुछ अलग बनाएंगे, नया ड्रेस लेके दे दिया, चश्मे नए बनवा दिए, नया फोन खरीद लिया. ऑल दीज आर वेलफेयर. So similarly in industries there are a lot of things which is done for the employees. जैसे मैं जब बहुत छोटा था, पापा एक शुगर फैक्ट्री में जॉब करते थे, तो वहां वॉशरूम क्लीन करने के लिए फिनाइल भी कंपनी देके जाती. अभी हम हार्पिक वगैरह लाते हैं ना, वॉकर हार्पिक, तो ऐसा फिनाइल, बल्ब, तभी एलईडी नहीं था, पीले पीले बल्ब आते थे 40 वाट 60 वाट के. चारपाई के लिए बान, साइकिल, घर का फर्नीचर, ये सब कंपनी एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करती है बेस्ड ऑन देयर ग्रेड्स एंड स्टेटस. रहने को घर, फ्री बिजली पानी, है ना, कैंटीन. फिर कंपनी के प्रीमाइस में ही एक हॉस्पिटल था, 2 स्कूल थे, ग्रोसरी राशन किराने की दुकान थी, कंपनी का स्टोर था. ऑल दीज आर वेलफेयर. क्लब था जहाँ इंडोर गेम्स, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, कल्चरल इवेंट्स, साल में 2-3 बार अलग अलग बड़े बड़े इवेंट, कभी कभी खाली एम्प्लॉयज के लिए, कभी एम्प्लॉय और फैमिली के लिए. सो ऑल दीज आर एम्प्लॉय वेलफेयर एक्टिविटीज. सेम थिंग इज अभी today's scenario also there are a lot of areas which are for employees. Transportation, canteen, uniform, safety measures, medic claim, खुद के लिए, फैमिली के लिए, पेड हॉलीडेज, है ना, पेड बिजनेस ट्रिप्स, पेड वैकेशंस. सो लॉट ऑफ areas or activities which is exclusive for the workers. Workers as people, employees. तो इतने सारे लोग हैं तो उसको देख रेख के लिए भी हमको एक आदमी चाहिए, है ना. सो देन एम्प्लॉय वेलफेयर इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ HR. So if you see there are lot of areas.
अच्छा, इतना सब करने के बाद भी एक दिन आदमी छोड़ के तो जाएगा। Yes, sir, definitely. तो जब छोड़ के जाएगा तो उसका एग्जिट, क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, क्या तकलीफ है, हम कुछ कर सकते हैं क्या, टू एसेस ऑल दीज एरियाज ऑल्सो, HR इज वन सच फंक्शन रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल फॉर दिस, है ना। So these are various areas of human resource management. Got it? Yes, sir. So entire employee life cycle is taken care by HR. So from hiring till separation. Okay. तो अगर कोई ऐसा समझता है कि HR बहुत आसान जॉब है, इट्स अ वेरी ओके काइंड ऑफ प्रोफाइल, then it is misleading. There are various areas of specialization, है ना। जैसे आप बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो, इकोनॉमिक्स इज स्पेशलाइजेशन। सिमिलरली हमने जितना भी फंक्शन का बात किया ना अभी, वो अपने आप में एक वर्टिकल है ना, तो अपने आप में उसका स्पेशलाइजेशन है। व्हेन वी टॉक अबाउट रिक्रूटमेंट, टैलेंट एक्विजिशन बोलते हैं उसको, टीए, है ना। तो उसमें अप टू डायरेक्टर लेवल तक का पोजीशन मिले, डायरेक्टर टैलेंट एक्विजिशन, खाली रिक्रूटमेंट करने के लिए। एम्प्लॉय रिलेशन, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, IR ER, वो अपने आप में एक डाइवर्स फील्ड है। देन कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट, सैलरी नेगोशिएशन हमने बात की स्टार्टिंग में रिक्रूटमेंट के टाइम पे, है ना। तो कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट, किसको कितना सैलरी मिलना चाहिए, क्या बेनिफिट मिलना चाहिए, वो अपने आप में एक स्पेशलाइजेशन फील्ड है। एम्प्लॉय डेवलपमेंट, पीपल एंड कल्चर, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, OD OB, इवेंट, CSR, ये सब बात किया हमने। कॉम्प्लायंस, Yes, sir. है ना, ये सारे अपने आप में इंडिविजुअली एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है। और एक जर्नलिस्ट रोल है जिसको ये सब आता है, तो देन ही इज हेड ऑफ द HR, CHRO, HR हेड, L&D हेड, लर्निंग एंड डेवलपमेंट हेड, इस तरह का अलग अलग पोजीशन पे आप ग्रो कर सकते हैं। So the basic purpose of today's session is just to make you aware about what human resource management is all about. What are the possibilities? क्या क्या potential है, और whether it is a cakewalk or there are challenges. So it is both ways how you It is manage and challenging. handle, है ना। और आज का जो HR है ना, this is not the way it has started. What we see today is a very pure or fine version of HRD, human resource development या human resource department, but it started long back, है ना। So the act itself is, I think, the oldest act that we use in the industry is of 1923. Employees Compensation Act बोल के act था। Earlier it was Workmen Compensation Act 1923. तो 1923 का कानून 100 साल पुराना तो कानून है ना। मतलब ये जो भी एरिया है, जो गैमेट है, दिस इज वेरी ओल्ड एंड इट हैज इवॉल्व ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। ये धीमे 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 करके इवॉल्व हो। सो इसके पहले पर्सोनल मैनेजमेंट था, खाली एम्प्लॉय से रिलेटेड चीजें थी।
Then gradually things started coming up. Learning आया, training आया, compliance आया, relationship आया. Then everything came together, and today what we see is a different HR. This is how it all started. 1850, the Industrial Revolution in Europe and Asia. Then 1911, labor officer का appointment. Then when people started joining in, there were grievances, there were disputes. So the union came in picture. कमेटी होता है ना अपना मोहल्ले में, सोसाइटी में अपने कमेटी बना लेते हैं. बिजली पानी सोसाइटी सफाई के लिए कोई ना कोई होगा, अलग अलग आदमी. So then union came into picture. Then human approach in 20th century beginning, Owen and Taylor, they came up with different theories of incentives. कि आदमी काम करता तो पैसा मिलना चाहिए, अच्छा काम करता तो अच्छा पैसा मिलना चाहिए, खराब काम करता तो पनिशमेंट मिलना चाहिए. So over a period of time, all these things evolved, and implication of law, act, this is age is old. In 1760 BC, the Code of Hammurabi, Babylonia, हिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, बेबीलोन के पठार ऐसा कुछ आता था. तो these manuscripts were available, जिसमें उस जमाने के नियम थे. Of course, they were for the society to operate, है ना. जैसे हम मानते हैं भाई एक गोत्र में शादी नहीं होना चाहिए ना, इंटरकास्ट इंटरफेथ इंटर रिलीजन मैरिज के लिए प्रोविजन था. ऐसी बहुत सारी चीजें थी, लिखित या परोक्ष. So in this code of Hammurabi, there are 282 rules which were already inscribed on stones, on manuscripts, and there were severe punishments. अभी भी सुनते हो कि हाथ के बदले हाथ, आंख के बदले आंख, चोरी की तो हाथ काट लेंगे, है ना, बुरा व्यवहार के तो आंख फोड़ देंगे, चौराहे पे फांसी दे देंगे. ये सब सुना होगा, अभी भी हम सुनते हैं. इन सर्टन कंट्रीज स्टिल, नॉर्थ कोरिया कॉमन. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो ऐसे कुछ कंट्रीज हैं जहां अभी भी ये सब चीजें प्रैक्टिस में है सीवियर चीजें. तो 1901 में मिला था ये पत्थर, द कोड ऑफ हम्मुराबी. सो करीब 125 साल पुराना. तो सिस्टम्स, प्रोसेसेस, एप्लीकेशन, ये तो कब से है ना. एंड फ्रॉम देयर थिंग्स slowly and gradually evolved. Then industrialization came in, then people started coming in, then work-life balance आया, COVID आया. Now in COVID, the most challenging things were how to retain people. काम नहीं है, फैक्ट्री बंद है, क्या करेंगे, कैसे लोगों को एंगेज करेंगे, है ना. Then HR came in picture. Business, they said no, we should lay off people. लोगों को निकाल देना चाहिए. No work, no pay. है ना. तो then people made the business explain कि बस ऐसा नहीं, ये टेम्पररी फेज है, 2 महीना, 4 महीने, 6 महीने, जो भी है. बट वंस द इंडस्ट्री विल स्टार्ट फंक्शनिंग, हमको आदमी चाहिए ना, कहाँ से लाएंगे, हाउ डू वी रन द शो. सो व्हाट इज द वे? द वे इज, लेट्स हैव सम स्ट्रेटजी टू होल्ड द पीपल. लेट अस कन्विंस पीपल, लेट अस मेक देम अंडरस्टैंड, लेट अस गिव देम कॉन्फिडेंस. तो स्ट्रेटेजिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट केम इन पिक्चर. SHRM has to be somewhere. Strategic objectives like how to manage, how to run, what is best, how to upskill people. 4 महीना काम नहीं करेगा आदमी, भूल जाएगा चीजें कि मेरा भी कोई फैक्ट्री है, मेरा भी कोई बॉस है, मैं भी किसी के लिए काम करता हूँ. सो दे केप्ट दिस जूम
MS Team, online session, offline session, ये सब धीमे धीमे lot of things started developing and HR was very pivotal. जब चीजें रिस्टोर होने लगी पोस्ट कोविड, सोशल डिस्टेंसिंग, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन, दुनिया भर का प्रॉब्लम. So who aided, who helped? It was HR that was very pivotal in these situations. Okay, so it is a specialized subject. It is as core as your manufacturing and production. हाँ, इसमें एक ही चीज है, आपको ROI दिखता नहीं है ना, कितना बनाया वो नंबर मालूम पड़ता है, लेकिन इतने लोगों को कैसे रोक के रखा मालूम नहीं पड़ता है. So there are very limited ROIs that you can count and calculate objectively. Lot of subjectivity is there. Okay. So all in all, it's a wonderful area. This is the perhaps only field where you have an opportunity to interact with everybody of the organization. Yes. छोटे से लेके बड़ा हर आदमी के साथ आप इंटरेक्ट करते है ना. Yes, sir. Because you are hiring, you are training, you are engaging, you are celebrating success, you are taking actions. So you are there on the shop floor, you are there in the office, you are in every event, coordinating. So this is the function which is largely connected with people. Most of the time, it's a thankless job. Because जैसे फैमिली में अगर 14 लोग हैं तो हर आदमी को आप खुश नहीं रख सकते है ना. कहीं ना कहीं किसी न किसी को कोई ना कोई तकलीफ तो होगी. Yes. अगर तुम सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करती हो तो कोई ऐसा होगा जिसको सुबह की लाइट बर्दाश्त नहीं होगी तो उसको तकलीफ होगा. तुम Yes. अगर देर रात तक जग के पढ़ती हो तो कोई ऐसा होगा जिसको जल्दी सोने का आदत है. Yes. तो बोले क्या दीप्ति रात में 11 बजे तक लाइट चालू रहती है. क्या दीप्ति सुबह 4 बजे खटर पटर करना शुरू कर देती है. तो यू कांट प्लीज एवरीबडी, बट देन दिस इज हाउ यू हैव टू फंक्शन एंड यू हैव टू एंश्योर दैट वो दोनों लोग, तो सुबह 4 बजे वाले को भी दिक्कत है, रात को 11 बजे वाले को भी दिक्कत है, बट फिर भी उन सबको दीप्ति से पर्सनली कोई दिक्कत नहीं. You know, so that is the role of HR per se. So the purpose of this session is just to orient with the function, with the subject, with the stream, and career, of course. For all 40 years of your life, you can always work, or it is a preferred career nowadays. Humanities for many of the people. People psychology है, individual psychology है, industrial psychology है ना. तो ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जो इसके अलावा या इससे एसोसिएटेड है, जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज है ना. Yes. So it's a wonderful area. You have to think about it. If you have any questions, you want to ask something, we can still discuss. Sir, if there are multiple HRs in the company and they have conflict with each other, then how they resolve? There's a people management, interpersonal skills, और ये तो होगा ही है ना. There has to be, there will be conflicts, there will be conflicts. और उसके लिए going forward when it will come in corporate. अच्छा, अभी घर में you may have siblings, है ना. Yes, sir. I have भाई बहन होंगे, चाचा चाची के बच्चे होंगे, मतलब कजिन्स होंगे, cousin. Yes. है ना. तो Yes. झगड़ा होता है आपस में. Yes. Common. मोरलेस सेम एज ग्रुप के हो गए आप लोग, एक दो Yes. साल के पीछे. Yes. तुम थर्ड ईयर में हो, कोई फर्स्ट ईयर में होगा, कोई 12th में होगा, कोई अभी भी पढ़ के बाहर निकला होगा. मोरलेस सेम एज. अच्छा, सबके शौक अलग अलग होंगे. Yes. किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को पिक्चर देखना, कोई खेलना अच्छा लगता है. ये सुनो. Yes, sir. तो हाउ योर पेरेंट हैंडल दिस सिचुएशन? They ask
to do whatever you like, and to my siblings also, to me also. And Hmm. if there is conflict between us, they firstly they try to make us like understand about the situation कि वो छोटा है वो बड़ी है तो आप समझो, और अगर नहीं तो फिर they give something like, if you don't do that I will give you this thing or that type of. Similarly, the industry. Same thing is in the industry also. Sometimes it is a conflict resolution, है ना, मतलब जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको रिजॉल्व करना है. Sometimes it is by virtue of dialogue. Sometimes it is by virtue of the position. So if there is a conflict, whosoever is there to resolve. जैसे घर के मामले में अगर बात करें तो पापा है शायद, तो ऐसे डिपार्टमेंट में एचओडी है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है. ही विल असर्ट एंड इंश्योर दैट थिंग्स आर रिजॉल्व. तो उसका एक तरीका है कन्फ्रंटेशन, मतलब दोनों पार्टियों को आपस में बिठा के बात करना और मुद्दे पे लाना, मतलब उसको एक कॉमन कंसेंसस पे लेके आना. सेकंड इज ऑब्जेक्टिविटी. आपका रोल क्या डिमांड करता है, आप कैसे डिलीवर कर रहे हो, उसका रोल क्या डिमांड करता है, वो कैसे डिलीवर कर रहे हैं. कॉन्फ्लिक्ट किस कारण से होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा उसको अच्छा दिया मुझे खराब दिया, उसको आपने अप्रिशिएट किया मुझे नहीं किया, Yes. उसकी ज्यादा सुनते मेरी नहीं सुनते, Yes. है ना. ये कुछ फंडामेंटल रीजन है. आप उसको ज्यादा सपोर्ट करते हो, फेवर करते हो, मुझे कम करते हो. Yes. पापा छोटे भाई को ज्यादा प्यार करते हैं, मुझे नहीं करते. उसकी हर बात मानते, मेरी नहीं मानते, Yes. है ना. अच्छा, मोस्ट ऑफ टाइम दीज आर एजम्पशंस. ये सब मेरे ख्याल है. आप उनको पूछोगे ना तो वो सब बोलेंगे ऐसा थोड़ी ना पागल, मेरे लिए तो Yes. दोनों एक ही जैसे हो. Yes. बट तुम आपस में 2 दिन इतना किच 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 किच, हाथ में चाकू दे तो खून कर दें एक दूसरे का, ऐसा लड़ाई कर लेंगे, है ना. इवेंचुअली Yes. इट इज अबाउट हाउ आई एम ट्रीटेड, एंड दैट इज द रीजन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. और उसका जो सबसे आसान तरीका है दैट इज कन्फ्रंटेशन. तो दोनों को बिठा के बात करेंगे, तो जो भी सीनियर होगा वो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन पे आप लोगों को लेके आएगा. दिस इज विन विन. और दूसरा एक कॉन्सेप्ट है, इफ यू हैव टाइम इंटरेस्ट होगा तो, ट्रांजैक्शन एनालिसिस बोल के एक कॉन्सेप्ट है. टीए, ट्रांजैक्शन एनालिसिस. ट्रांजैक्शन एनालिसिस बोल के कॉन्सेप्ट है. So if you get time and Google it, so that will also answer your question that how this conflict can be resolved. So it is, अगर ऑब्जेक्टिव बेस्ड सिचुएशन सिस्टम है तो ऐसे कॉन्फ्लिक्ट की प्रोबेबिलिटीज बहुत कम है. फिर भी ऐसा होता है कि कोई है जो अच्छा परफॉर्म करता है, तो इट इज बट ऑब्वियस कि ध्यान उसकी तरफ ज्यादा जाएगा, उसको ज्यादा काम मिलेगा, उसको अप्रिसिएशन भी ज्यादा मिलेगा. ऐसा होगा, ये कॉमन सिचुएशन. तो उसके लिए एज एन इंडिविजुअल हैव टू बी कॉम्पिटिटिव. हर बार उसे क्यों, मुझे क्यों नहीं बुलाते, तो डिप्रेशन हो जाऊंगा, तो आई विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म. इफ विल स्टार्ट वॉलंटियरिंग इट इन डेज टू कम और years टू कम, आई विल बी इक्वली कॉम्पिटिटिव, है ना. क्लास में होता है ना, क्लास में 50 बच्चे हैं, तो कोई 2 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो सभी टीचर के फेवरेट होंगे, Yes. है ना. पता है ना सर, Yes. Yes. क्लास में कोई भी टीचर सवाल पूछेगी तो पहले उसको ही पूछेगी, या पूछेगा तो पहले उनको ही पूछेगा, या वही सब जवाब देंगे. कोई काम होगा तो पहले उसको ही बोलेंगे. ऐसा होता है ना. सो दिस इज अ नॉर्मल साइकोलॉजिकल बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि आपको जो पसंद आता है जनरली उसके साथ ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं. आप जो काम करके देते हैं आप उसको ज्यादा काम सौंपते हो, है ना.
आपको भरोसा है कि वो करके देगा, Yes. तो इस चक्कर में आप बाकी 40 लोगों को इग्नोर कर देते हो कभी कभी। उनको ऐसा लगेगा कि यार ये मेरे साथ अन्याय हो रहा है। तो ऐसे कॉमन फोरम में, कॉमन मीटिंग में, डिपार्टमेंटल मीटिंग में यू ऑल कैन सिट एंड डिस्कस, है ना। एंड गोइंग फॉरवर्ड एज द मैच्योरिटी कम्स इन, एज यू ग्रो अप द हायरार्की, you will also be in a position to resolve such issues. तो अभी रिसीविंग एंड पे, बाद में डिलीवरिंग एंड पहुंच जाएंगे, है ना। सो दिस वे इट कैन बी हैंडल। Sir, another question was, uh, like HR recruit the people or the candidate according to the position. If the condition may arise in the organization ki a place is vacant, but the HR is not getting the proper person to fulfill that place. So लॉन्ग ड्यूरेशन में अगर वो प्लेस फुलफिल नहीं होती है, तो क्या ये बर्डन एचआर के ऊपर आएगा कि आपने अभी तक कैंडिडेट सर्च नहीं किया, या कैंडिडेट क्यों नहीं मिल रहा, ऐसा कोई बर्डन एचआर के ऊपर आता है? बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। इट इज एन बट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बट सर, इसमें एचआर की तो कोई मिस्टेक नहीं है। क्यों? If he or she is not getting the proper candidate to fulfill the space, then how come he or she is responsible for that? करेक्ट। सो दैट इज द रोल ऑफ एचआर, दैट इज द रोल ऑफ एचआर टू मेक द मैनेजमेंट अंडरस्टैंड कि आप जो मांग रहे हैं ये सिर्फ चांद पे उपलब्ध है, इट्स ओनली अवेलेबल ऑन द मून, और उसको वहां से यहाँ आने का ये खर्चा है। इफ यू आर रेडी, आई विल ब्रिंग दैट। इफ यू आर नॉट रेडी, तो एकदम नीरेस्ट बाजू में बनारस में एक लड़की है जो मिलती जुलती है। तो चांद वाला अगर 100% है, तो दीप्ति 80, 70, 90% तो उसके ऐसी है। तो बाकी 10% जो गैप है उसको ठोक पीट के अपन बना लेंगे तो चांद जैसी हो जाएगी। ये उसका कॉस्ट है। अभी आप बताओ क्या करना है। वो बोलेगा चांद वाले चाहिए, तो साहब जब तक चंद्रयान बनेगा, पहुंचेगा, आएगा, तब तक इंतजार करो। बोलेगा नहीं यार, उतना तो कौन वेट करेगा, कॉस्ट भी ज्यादा है। ओके, सो देन वी विल ऑनबोर्ड दीप्ति, और जो गैप है 10%, 20% वी विल ट्रेन एंड मेक हर द पोजिशन रेडी, है ना। दिस हैपन्स इन द क्रिटिकल पोजिशंस। ओके, सो गोइंग फॉरवर्ड देयर इज अ वर्ड कॉल्ड कॉम्पिटेंसी, कोर कॉम्पिटेंसीज। तो 100% कॉम्पिटेंट आपको नहीं मिलेगा, Yes, है ना। आप घर पे शू पॉलिश करते हो, yes, शूज पॉलिश करते हो, कपड़ा आयरन करते हो। yes. अच्छा, आपका आयरन किया हुआ कपड़ा, उसमें जो क्रीज बनता है, आप बाहर लॉन्ड्री में दे दो और वो जो आयरन करके देता है वो सेम आता है? No, नहीं। आप जो शू पॉलिश करते हो उसमें जो शाइन आता है, अब बाहर से जो पॉलिश करा के लाते हो उसमें शाइन आता है, वो सेम होता है? no. नहीं ना। यू यूज बेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। Yes, बजाज का स्टीम वाला आयरन, इलेक्ट्रिक झटका नहीं लगे, वजन में हल्का, द सोफिस्टिकेटेड मशीन। yes, स्टिल यू डोंट गेट द रिजल्ट विच यू गेट फ्रॉम दैट लॉन्ड्री वाला आदमी जो 2.5 किलो का इतना बड़ा इस्त्री, ½ किलो कोयला जलता हुआ अंदर रख के कपड़े में इस्त्री मारता है ना। तो द रीजन इज स्किल, competency. yes. So for any role, what you need is a competent people. Sometimes you get, sometimes you don't get. When you don't get, you have to make them competent. है ना। हिंदुस्तान में अब तक जितने भी प्रधानमंत्री बने, सारे कॉम्पिटेंट थे क्या? No. शायद नहीं, है ना। तो कोई सिचुएशन ऐसा भी रहा होगा कि जो अवेलेबल है उसमें से कौन सबसे होशियार, उसको बनाओ। तो हर 11 11 महीने में बदलते रहे, Hmm. है ना। तो दिस इज हाउ द कॉम्पिटेंसी इज इंपॉर्टेंट।
So when you don't get an ideal candidate, there is a pressure on HR. So whenever there are competency gap, you can fulfill. ट्रेन करके सिखा के काउंसिल करके आप उसको करेंगे. तो दैट इज द रोल ऑफ एचआर. इट्स वेरी राइट क्वेश्चन दैट whether it is a pressurized job. Yes, it is a pressurized job because there is a cost. आदमी नहीं है तो नुकसान है. Yes. If your father does not report to the business, there is a loss. Yes. You will not get the earning for that day. Yes. है ना? Yes. So same thing is with the business. And to get a person, HR is accountable. तो कभी क्या होगा, पापा बीमार हैं तो चाचा को भेज दोगे या तुम चले जाओगे, चलो आज मैं संभाल लूंगी. सो आई कैन ट्राई टू मिनिमाइज द लॉस. हो सकता है एक आध सामान सस्ते में बेच दें, बिना भाव देखे बेच दें, उधार दे दिया. All these things are possible, but all these are losses to the business. So therefore, if father is accountable, कि अगर मैं नहीं हूं तो कौन संभालेगा. सेम थिंग इज इन द इंडस्ट्री. एचआर इज अकाउंटेबल, कि अगर वो आदमी नहीं आएगा तो चलाएगा कौन दुकान. ओके, देयरफॉर देयर आर वेज एंड मीन्स. ऐसा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. So there are ways and means. I will have a database ready. I'll have my own contacts. I'll do headhunting. I'll poach people. बाजू की दुकान से उठा लाऊंगी एक दिन के लिए आदमी. क्या समझ लेना, हमारा सेम ही तो बिजनेस है, 10 रुपए ज्यादा ले लेना. They will have an understanding. So there are ways and means that HR will use. अभी तो AI का जमाना है, चैट जीपीटी है, ऑनलाइन बहुत सारी चीजें अवेलेबल है. So by various ways and means, you will try to minimize that loss. But yes, चैलेंज तो रहेगा. वो तो इकोनॉमिक्स में भी है. Yes. गलत हिसाब कर दिया तो लफड़ा. Yes. Yes, yes. Right, Deepti, anything else? No, sir. I have understood. My queries are Hmm? solved. So you can So, share right, your quick feedback about today's learning, so that Hardik sir will also come to know, like, what exactly your क्या क्या हमने understanding कवर is. किया आज. Yes. Sir, we may, if we go in today's video, we have learned that what is the work of HR and the role of HR, his duties, his responsibility, the problems he faced in his work, and also the work he do in the organization. तो एक single slide, if you're using PPT, if you know how to operate it, okay, या word या handwritten. आज हमने जो भी कुछ टॉपिक्स, जो भी कुछ हमने कवर किया, so that single line bullet point is good enough, either in terms of PPT or in terms of a handwritten note. You can put up on my WhatsApp या सर को दे देंगे तो भी चलेगा. Just to cover, है ना, रिवीजन ऑफ द टुडे सेशन, कि आज हमने क्या क्या कवर किया और व्हाट वाज योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट इट. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, यू कैन पुट अप दैट आल्सो while going through those notes. है ना. PPT, purposefully I have not gone through the PPT since it is one-on-one kind of thing, so it is better to have with a relatable example that can make the concepts understood to you. So, If you have any feedback on speed, method, language,
जल्दी पढ़ाया, कम पढ़ाया, स्लो पढ़ाया, अच्छा पढ़ाया, खराब So पढ़ाया? that was fine and very good for me. From my side, it was absolutely clear to me, each and everything. Sir, HR auditing, you have told me about HR auditing. So audit, if matlab, in BCom honors, we have studied about auditing of auditor mainly. How HR audits the thing? Like Audit what's as a the data concept he is was what? Audit is to find yes, out whether the systems are okay or not. yes, sir. That is audit. In economics or in finance, you go for financial audits. है ना? मतलब लेजर में डेबिट क्रेडिट बराबर है कि नहीं, मैंने इसको पेमेंट किया तो क्यों किया है ना? दैट इज द ऑडिट दैट यू परफॉर्म देयर. सेम थिंग इज एचआर ऑडिट. व्हेन आई पेड एन एम्प्लॉय सैलरी, व्हाट वाज द बेसिस? If I deducted, why I deducted? If I paid extra, why I paid extra? Yeah, if I take a discipline action, why I take a discipline action? Why I terminated an employee? Whether I am paying them adequate, whether I am exploiting them. 8 घंटे की जगह में 12 घंटे काम कर रहा हूँ, पैसा 10 घंटे का ही दे रहा हूँ. खाना मिलता है कि नहीं मिलता है? इतना बड़ा इंडस्ट्री है, 2000 लोग काम करते हैं, कैंटीन है कि नहीं है? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देते हो तो पैसा चार्ज करते हो कि नहीं करते हो? वर्क प्लेस कैसा है ना? सो ऑल दीज आर ऑडिट. सो इट इज नॉन फाइनेंशियल एरिया. Auditing the HR processes is HR audit. है ना? So audit per se is finding the deviations. आपका एक सेट प्रोसेस है, वो कहाँ नहीं मैच हो रहा है और क्यों. So that is what HR audit is. So if a company wants to hire an HR, the place is vacant for there in an organization. When the candidate went for the interview, who takes the interview of the HR? HR itself. So if they already have the HR there, why they No, need no. HR? As I said, na, we went through the gamut of HR. रिक्रूटमेंट से लेके एग्जिट तक हमने सारा एरियाज देखा. किस पोजीशन के लिए चाहिए वो डिपेंड करता Yes, है ना? So yes, there is a activity called HR operations, पेरोल मैनेजमेंट, सैलरी वगैरह प्रोसेस करना. ठीक है, तो उसके लिए आदमी चाहिए. अभी डिपार्टमेंट हेड तो नहीं करेगा ना ये ट्रांजेक्शन काम, oh, तो उसके लिए एक एंट्री लेवल का बंदा चाहिए. ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो उसमें एक आदमी ऐसा होगा जो स्ट्रेटेजी बनाएगा, क्या टॉपिक देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, बट उसको रूटीन कोऑर्डिनेट करने के लिए एक बंदा चाहिए. ट्रेनर ढूंढो, ऑर्गेनाइज करो, लोगों को बुलाओ, ट्रेनिंग कराओ, फीडबैक लो. राइट. सो यू ऑलवेज नीड ए पीपल एट डिफरेंट लेवल इन द डिपार्टमेंट. तो अगर एक है तो दूसरा नहीं है, ऐसा तो नहीं है. Actually, she is having a limited understanding. तो basically she wanted to say कि अगर किसी कंपनी में एचआर है ही नहीं तो उसको कौन रिक्रूट करेगा, तो नहीं, उसको ओनर रिक्रूट करेगा. करेक्ट. अगर कोई नहीं है, अगर एचआर है ही नहीं, जहां कोई नहीं है तो वहां मालिक है सब कुछ. जहाँ कोई नहीं है वहां मालिक है, जिसके पेरेंट्स उसके गार्जियन तो है ना. yes, sir. तो ऐसा जहाँ कोई नहीं है तो वहां ओनर है. द बेसिक पर्पज इज मेरा फंक्शन होना चाहिए, दैट इज ओनर्स ऑब्जेक्टिव. तो कोई एक बंदा चाहिए जो इन सब प्रोसेस को संभाल ले. तो वहां से चालू होगा. वो उसको आप एचआर हेड बोलो, एचआर एग्जीक्यूटिव बोलो, एंट्री लेवल बोलो, डेटा एंट्री ऑपरेटर बोलो, जो भी बोलो, वहां से शुरू होगा. बाद में धीमे 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 चीजें ऐड होती जाएंगी. एज द बिजनेस विल ग्रो, एज द बिजनेस विल ग्रो, यू नीड मोर पीपल. 1500 लोग हैं तो उसमें एक एचआर वाला इज नॉट सफिशिएंट. Yes, sir. तो वहां आपको चाहिए. कहीं कहीं पे एक्ट आपको मजबूर करता है, कानून आपको एनफोर्स करता है कि हर 500 लोगों पे हमको एक सेफ्टी ऑफिसर चाहिए, हर 500 लोगों पे हमको एक वेलफेयर ऑफिसर चाहिए, है ना? तो कभी कभी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स है, आपका बिजनेस रिक्वायरमेंट है,
और योर ओनर ड्रिवन, अगर एज सर से जहाँ कोई नहीं है तो वहाँ ओनर विल हायर। तो जब ओनर हायर करेगा तो उसका ज्यादा फोकस टेक्निकल नहीं होगा, उसका फोकस बिहेवियरल होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग चेक करेगा वो कि अभी मेरे को ये तकलीफ है, इनका पगार करने के लिए कोई आदमी नहीं है, ये रोज झगड़ा करते हैं, इतना टाइम मेरे पास नहीं है। तो ही इज लुकिंग फॉर समवन हु कैन लुक आफ्टर दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग आइडिया। जब कोई एचआर वाला इंटरव्यू करेगा तो वो टेक्निकल एस्पेक्ट चेक करेंगे। आप रिक्रूटमेंट कैसे करोगे, कौन से एक्ट में क्या प्रोविजंस हैं, आप डाइवर्स वर्कफोर्स को कैसे मैनेज करोगे, वेलफेयर रिक्वायरमेंट को आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, लोगों को एंगेजमेंट के लिए क्या क्या एक्टिविटीज कर सकते हो, उसमें आपका रोल क्या होगा। देन बिकम्स वेरी टेक्निकल डिस्कशन। Yes. So for any interview, it is always HR and technical. In case of it is only HR and HR, because that is your core. That is technically भी आपका वही डिपार्टमेंट है, आपका फंक्शन भी वही है। बिहेवियर और टेक्निकल दोनों एस्पेक्ट के लिए आपका HR ही इंटरव्यूअर होगा। एंड समटाइम्स देन अदर प्लांट हेड या क्रॉस फंक्शन कोई ऐसा, सो दैट यू डोंट हायर अ बायस कैंडिडेट, उसके लिए एक सेकंड लेवल हो सकता है। Sir, every person in an organization have a personal goal also to achieve and the करेक्ट, organizational goal also to achieve. परफेक्ट, The HR person, the HR is a person who helps to achieve the organizational goal as well as personal goal of the employer. बिल्कुल। Then, if HR also is a person, is he or she also has his personal goal. So how come he or she can achieve their personal goals while taking care of organizational goals as well as employers goals? सो थोड़ा सा टेक्निकल है। एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज इज ओन विजन, मिशन एंड वैल्यूज। मेरी इंडस्ट्री को कहाँ जाना है, कैसे जाना है, और उसके लिए मैं क्या क्या तरीके अपनाऊंगा, Yes. इट इज क्लियर फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। Yes. आई वॉन्ट टू बिकम द लार्जेस्ट edtech company. Hmm. That is, say, vision of young skill India. Okay, my values is availability, Yes, sir. competent workforce, Yes, sir. uh, tech savvy systems, latest technology in the Yes. field. ये मेरे values है, ठीक है। Now when I hire someone, my first preference will be to see that he is able to meet these values. तो अगर आपको टेक्नोलॉजी पसंद है, आप लोगों को यू हैव फ्लेवर ऑफ स्पीकिंग, you love transferring knowledge, okay, and your personal goal was to become a facilitator, that was your personal goal. My company wants that people who are coming to me are good orator, have strong understanding about concept and subject. So your personal goal, my personal goal will coincide. And last one, Yes. okay, if it is not matching, आपको कंप्यूटर समझ में नहीं आता है, जूम कैसे ऑपरेट होगा पता नहीं, फीचर्स मुझे समझने नहीं है, अच्छा पता नहीं और मैं सीखना भी नहीं चाहता, तो ये शॉर्ट एसोसिएशन होगा, सगाई होगी, शादी नहीं होगी। Yes. लड़का लड़की पसंद आ गए, अच्छे हैं, सुंदर है, एक दूसरे को बात करने में अच्छे हैं, एंगेजमेंट हो गया, लेकिन बाद में मालूम पड़ा ये तो लफड़ा है यार, जमेगा नहीं। सो यू डिटैच, यू सेपरेट। सो दैट इज हाउ, सो दिस इज द रोल ऑफ एचआर, टू फाइंड आउट द पीपल हु आर कल्चरली फिट। लाइक टाटा के जो होटल्स है ना, ताज वगैरह, उसमें वो लोग बहुत क्वालिफाइड लोग नहीं ढूंढते, जो ग्राउंड स्टाफ है ना, they go in remote villages and they find out the people who have
हॉस्पिटलिटी वैल्यूज है, जो रिश्तों को समझते हैं, जो हॉस्पिटलिटी एज ए वैल्यू समझते हैं, because they understand that he will be able to do more justice with my guest. जैसे उसके मेहमान आएगा तो कैसे हैंडल करता है, ऐसा वो मेरे कस्टमर्स को अपना मेहमान समझ के हैंडल करेगा. And that is where the business goal and individual goal will coincide. So vision, mission and values, that is the concept or way things will work out. So they are all softer aspects of HR. So it's not very easy thing, of course. Candidate, इसीलिए HR का इंटरव्यू होता है ना, कैंडिडेट सिलेक्शन में. टेक्निकली वो कितना भी होशियार हो, लेकिन वो मेरे एनवायरनमेंट में फिट होगा कि नहीं. हाँ, 3 साल में नौकरी चेंज किया है, किसी ऐसे सिटी में काम करता है जो वहां का एनवायरनमेंट और यहाँ का एनवायरनमेंट सेट ही नहीं होगा, तो उसको नहीं जमेगा, चला जाएगा 4 महीने में, 6 महीने में. तो why to hire such people? It's better to wait for 1 more week, look for a better candidate who can gel in this environment. Good, but it was an interacting session and I really appreciate you remain involved throughout the session. Though ये आपका सब्जेक्ट नहीं है, नया नया है सब कुछ, but फिर भी asking questions is good, है ना? You are inquisitive, you want to learn and This is understand an whether. interesting topic to know about what is going in the industry, because we don't never visit the industry and ask the people like that, what are you doing, what are you not doing, how you feel or how you not feel about. And that's where, the very purpose of this Young Skill India, especially Neeraj sir, he has chosen people from industries itself. HRM पढ़ाने वाले तो BHU के बहुत सारे प्रोफेसर होंगे जो पढ़ाते होंगे, but then what is happening on the field and what is there in the book, there is a difference. So how industry operates is something different than what is written in the book. So we try to give you the hands-on concept है, वो concept का implementation कैसे है, दोनों चीजें जरूर. Yes, bookish knowledge is something else and the reality is something else. Like we Correct. know HR is going to hire the candidates for the specific places, but who is going to hire the HR if the place is empty? We don't get in the book. Right. True. Onboarding, induction, helping people, ये कोई किताब में नहीं सिखाएगा. कॉन्सेप्ट बता देगा, रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में क्या डिफरेंस है सब बता देंगे, बट देन एक बार आ गया फिर क्या करना है. Yes. है ना? गलत बहू आ गई घर में तो पूरी जिंदगी का कलेश है ना. Yes. तो बाकी 13 के 13 जिंदगी भर परेशान रहेंगे. वो नहीं हो उसके लिए ठोक बजा के लाते हैं, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन इधर उधर सब पूछ पाछ के. आई मीन बहू या लड़का, वट एवर इट इज, वेदर इट इज ब्राइड और ग्रूम, आई एम नॉट बीइंग ए जेंडर बायस, बट अच्छा कमाता है कि नहीं, बुरी आदतें तो नहीं है, लक्षण अच्छे हैं कि नहीं, ये सब पता करते हैं. Yes. So that is how the HR also functions. Got it. Okay, Deepti, it was a fantastic session. Thank you so much for bearing with me. Thank you, sister, to solving my queries and questions. So if at all you pursue with HR, we will connect again. Otherwise, all the very best for your future. Thank you. In case of any query, concern, anytime on the topic or subject, you can always ask Neeraj sir and we can get connect again. Okay. Thank you. Okay. Thank you, sir. Thank you very Okay. much. It was Thank you, really sir. very practical session. And this is encouraging me to open a new domain. Family HR. Family. Advanced General Management in Family HR. Correct. So Family HR Business Management course can also be introduced in future. So thank you Will very be much. good. All the best. Thank